Hello everyone, I'm Srishti Ingle, and in this video I'm going to share my recent experience with Indigo. So let's begin. So guys, as I told in my previous video that I will go uh, in Nagpur for my Indigo interview. So I went there and it was not that good experience of mine. Like it's my third walk-in interview and दो इंदौर में हो चुके थे and to be very honest that two interview were really very good. I had a good experience in इंदौर और like नागपुर में ऐसा नहीं था. So it was very good experience. So what happened in Nagpur is that I went for my interview and मेरा नंबर 115 था and there were a lot of girl and इंदौर में उतना लड़कियाँ उतनी रहती नहीं है क्योंकि इंदौर में एक्चुअली होता रहता है तो कभी जाती हैं लड़कियाँ कभी नहीं जाती हैं तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं कि लड़कियाँ बहुत सारी आएँ बट इन नागपुर देयर वर अ लॉट ऑफ गर्ल लाइक मोर देन I guess 160 to 170. So yeah, so what happened with me is that we called in a group discussion and there were 12 girls in each group. So we 12 girls went and एक चीज़ मैंने देखी है कि like जो बच्चों ने इंस्टीट्यूट से किया है या उनका जो भी एविएशन से रिलेटेड उन्होंने किया है and like literally we 12 girls were standing in the outside in the room like उनके रूम के बाहर हम लोग सब खड़े थे and like हम लोग more than 15 to 20 minute हो गया था हम लोग सब खड़े थे and she called the HR called the girl who has done any degree or specialization in aviation or in a cabin crew. There are a lot of courses, a lot of things related to this field. So we were like, यार हम खड़े हैं यहाँ पे और लाइक हम पागल हैं हम चूतिया दिख रहे हैं क्या आपको कि हम इतने लाइक हम लोग को आधा घंटा हो गया था ऑलमोस्ट और हम लोग खड़े ही थे एंड लाइक वो HR ने बोला था कि वो बच्चों को बुलाओ नहीं पता आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट कोई TC आई डोंट नो आई डोंट रिमेंबर द नेम तो ऐसे कुछ तो था तो उन्होंने बताया था कि हमको अभी सिर्फ इन बच्चों से इंटरव्यू लेना है तो लिटरली वी वर स्टैंडिंग हाफ एन आवर उनके रूम के बाहर तो आई वॉज लाइक तो मेरे को ना वहीं से थोड़ी बहुत हिंट स्टार्ट हो गई थी कि चलो कुछ तो है मतलब बट आई वॉज लाइक ठीक है ट्रस्ट द प्रोसेस देन हमारी बारी आई सो वी वेंट inside the room and we 12 girls we both were sitting like both oh my god we all were sitting together and then HR took the resume of all the candidates and then she said okay to be very frank I will ask just one question so she said uh, what is your favorite spot तो उन्होंने बोला ये सेम क्वेश्चन आई विल आस्क ईच एंड एवरी कैंडिडेट सो आपको you have to answer it. So I had a good idea in my mind and because my resume was in the third number so I have a chance to prepare answer in my mind so I thought that but I was listening to the all other candidates so जो पहली लड़की थी she said that I love Manali so ma'am was also doing क्रॉस क्वेश्चनिंग सो आई वॉज लाइक अब यार क्योंकि देखो जगह उसके ही बारे में बताओ जहाँ पे आप जा चुके हो यू नो द थिंग यू नो द पीपल यू नो द वाइब यू नो द सिटी सो आई वॉज लाइक वाई नॉट योर होम टाउन बिकॉज यार यू लिव इन योर होम टाउन यू नो ईच एंड एवरी थिंग सो मैंने अपना आंसर में चुना कि आई विल से अबाउट माई होम टाउन सो वैन माई टर्न केम सो आई टोल्ड good afternoon, ma'am. I'm Srishti Ingle. I am 19 years old and I live in Jabalpur. Then I said hold the answer and it was good to be very honest because I have learned like I have already prepared like if क्योंकि मैं जबलपुर से आती हूँ तो lot of like HR used to ask that can you tell me about your hometown so मैंने ये आंसर पूरा ऐसा हो
रट के गई थी कि मतलब कुछ भी मेरे कोई भी होम टाउन के बारे में इफ़ समवन विल आस्क सो आई विल आंसर इट बिकॉज यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर होम टाउन सो इट्स से बेस्ट. अगर उनने कोई डेस्टिनी भी पूछा नहीं था कि डेस्टिनी तो अलग ही होती है. शी सेड स्पॉट. तो स्पॉट कैन बी एनी वेयर लाइक इट कैन बी योर होम टाउन इट कैन बी एनी वेयर सो आई चूज माई होम टाउन. सो आंसर स्मार्टनेस से खेलो. तो I told each and every answer, and then I said, I told about the people, about the what is famous in Jabalpur, famous breakfast, each and everything, and I also told her about 2-3 waterfalls. So she said, oh, poha and jalebi, that's a really great combo. And तो उन्होंने एक पूछा था कि हमारे यहाँ एक वाटरफॉल है भेड़ाघाट वाटरफॉल. तो उनने बोला कि उसका सेकंड नाम क्या है. तो आई टोल्ड मार्बल रॉक सिटी. Cause you know each and everything. तो I told her and she was like yeah right. तो भाई उनको मुझे पता नहीं था कि उनको पता होगा but she knows. So after that she was asking each and everyone the same question. And there was one girl, she was a good looking, a good height, good communication skill. She can speak properly in English. So she was good. Like in our group, me and her, like me and she was nice. It's not like कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, नहीं, मैं genuinely बता रही हूँ कि वो था वैसा. So the twist in the story is there was one girl, her name I don't know. HR asked her, like she took her resume, asked her वही same answer, same question, and like just because she has experience in customer service, like between 6 to 7 months she has experience in a customer service in a certain job. And she was asking her more question. So HR asked her about what is the name of your role. So she said that AR something, I don't know the full form. There was another name also after AR. So ma'am said what is the full form of AR, and she was quiet. Like, bro, you are working in certain job and that is your thing. You should know about your role. You should know the full form of your role. And she don't know even the name, yeah, even the full form of her job. And like, I don't know. So she was like, oh, you don't know. And वो क्या बोल रही थी, नहीं मैम हमारा नाम ही ऐसा है, हमारे रोल का नाम ही ऐसा है. नहीं भाई, अगर तुम्हारा AR है तो AR क्या है, कुछ तो है ना, तुम कुछ तो AR का कुछ तो होगा ना भाई. तो मैम ने भी बोला तो शी वॉज क्वाइट. लिटरली उसने कुछ बोला ही नहीं. फिर लाइक आई थॉट कि भाई इसका तो उसने हो ही गया उसका तो अब. तो मुझे लगा कि नाउ द टाइम इज़ फॉर द रिजल्ट. तो मैं तो ऐसा क्रॉस एंड थी कि भगवान प्लीज़ हो जाए. इवन कुछ नहीं, कम से कम मैं 3rd राउंड तक तो चले जाऊँ, बिकॉज यू गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. जितने बार आप इंटरव्यू देते हो, जितने बार आप हर राउंड में सिलेक्ट होते हो. तो आई वॉज लाइक प्लीज़ गॉड, प्लीज़ दिस टाइम प्लीज़. तो क्योंकि यार हम 12 लड़कियों में से सिर्फ 2 लड़कियां बहुत अच्छी बोल रही थी, बहुत. और मुझसे भी ज़्यादा अगर कोई अच्छी लड़की बोलती तो आई वुड से भाई, आई वुड से. मैं अच्छी नहीं होती तो मैं मुंह पे बोलती कि भाई मैंने इस बार सब भगाया है. बट भाई इंदौर का मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं. तो आई वॉज मोर फीलिंग कि अब तो मेरा हो जाए. मैं और जोश में थी कि भाई हो ही जाए इस बार तो. बट what happened is that HR took the resume of that girl, जिसको उसका फुल फॉर्म नहीं पता था, उसके जॉब का फुल फॉर्म उसको पता नहीं था. एंड वी वर लाइक लुकिंग ईच अदर फेसेस, क्योंकि ब्रो आई एम नॉट जजिंग हर, शी वॉज नॉट दैट लाइक जो एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी कैबिन क्रू के लिए. शी वॉज नॉट. इवन दो उसकी हाइट भी छोटी थी, even though she don't know how to speak in English properly, she was speaking in a broken English. And just because you have an experience in certain thing, you are selecting the candidates. And जो candidates की height, personality, सब कुछ इतना लोग इन्वेस्ट करके आते हैं, इतना सब करते हैं. एंड लाइक यू आर चूजिंग, ओके भाई, अगर आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए किसी भी वॉक में, किसी तो यू शुड मैंशन इट दैट वी नीड एक्सपीरियंस कैंडिडेट इन सर्टेन थिंग्स. तो भाई वो लोग देने आएंगे ना इंटरव्यू. तो भाई मुझे मतलब इतना लग रहा था. देन आई वाज लाइक कि ठीक है चलो,
मे बी आई वॉज इन अ रॉन्ग, मतलब मैं गलत सोच रही हूँ शायद। तो आई वॉज लाइक ठीक है भाई हटाओ, मतलब मेरा तो बहुत तेज वाला दिमाग खराब हो गया था कि मतलब यार हम इतने एफर्ट लगा रहे हैं और स्टिल यू आर चूजिंग दोस कैंडिडेट्स हु हैव एक्सपीरियंस इन सर्टेन थिंग्स। सो आई वॉज लाइक ओके मे बी शायद तक ऐसा नहीं होगा। बट जब दूसरा हमारे पास दूसरा जो लड़कियों का ग्रुप गया था एंड उसमें से एक लड़की लाइक उन लोग का भी हो गया था और वो हर राउंड से सिर्फ एक लड़कियों को सिलेक्ट कर रहे थे। लाइक ब्रो सीरियसली क्या मतलब भाई तुम एक तो तुम पार्शियलिटी कर रहे हो कि भाई दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं डिग्री लेके ये सीख के उसका सीख के, तो पहले तो तुम उनका इंटरव्यू ले रहे हो, उसके बाद जो भाई बाहर से आ रहा है जिसने सब कुछ प्रिपेयर किया, भाई थोड़ा टाइम तो इन्वेस्ट करो। एंड लाइक लिटरली एक लड़की थी हमारी राउंड में, भाई उन्होंने पता है एचआर ने कैसा सुना है उसका, उन्होंने ऐसा बोला है कि मैं सबसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगी एंड यू शुड अपना नाम वाम बताना, एजेज बताना और वो क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करना। लाइक वो लड़की ने सीरियसली आंसर देना स्टार्ट किया था और एचआर मैम ने सुना भी नहीं है, उनका बस कॉल आया कि हाँ आई एम डूइंग दिस या ओके श्योर, और वो अपना रिज्यूमे इधर उधर कर रही थी कॉल पे बात करते करते। एंड आई वॉज फीलिंग रियली वेरी बैड कि यार आपने कुछ सुना भी नहीं है। एंड लाइक सीरियसली जब उसका आंसर खत्म हुआ ना, उसकी तरफ देख के उसका रिज्यूमे उसने पीछे रख दिया। अरे भाई मैं बोल रही हूँ ठीक है आप सुन रहे हो, ठीक है ऑफ कोर्स आप सुन रहे होगे, बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है मैं मान रही हूँ सुन रहे होगे आप, बट भाई वो अटेंशन देना आपका है कुछ यार, उससे इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। जो भी इंसान प्रिपेयर करके आता है उसको लगता है कि भाई एचआर सुनेगा, आज नहीं तो कल एचआर सुनेगा। तो भाई मतलब मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा था यार उस लड़की के बारे में। और मेरे टाइम अगर एचआर ऐसा करती ना, मैं तो मुंह पे बोल देती मैम आपने तो मेरा सुना नहीं है, सो हाउ यू आर जस्ट रिजेक्टिंग मी। तो गाइज मेरा तो बहुत तेज पारा सनक जाता है जब ऐसा कुछ हरकतें करता है कोई मेरे साथ तो। बट ठीक है, तो फर्स्ट राउंड हम लोग का हो गया, उसके बाद बाकी लड़कियों का था। तो मैंने उनका भी इंटरव्यू हुआ तो मैंने पूछा कि टू होम दे सिलेक्टेड, तो शी सेड दे सिलेक्टेड द कैंडिडेट्स हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ इन सर्टेन थिंग्स। एंड आई वाज लाइक व्हाट आर द लाइक व्हाट द हेल यू आर डूइंग गाइस, व्हाई यू आर डूइंग दिस, अगर आपको यही सब चाहिए तो भाई मेरा तो हो गया था, दिमाग सनक गया था मेरा बहुत ही तेज अत्ती में, मतलब बहुत जोर से मेरे को गुस्सा आ रहा था। बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं, इंडिगो। तो देन हम लोग सब बैठे ही थे, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी और मुझे ऐसा लगा कि भाई इससे अच्छा ना इंदौर में होता है, सच बता रही हूँ मैं, इंदौर में होता है। और वहाँ के जितने भी एचआर है ना, वो भले अगर कॉल पे होंगे तब तक वो कुछ नहीं पूछेंगे, एक बार कॉल कट हुआ वो बैठ के सुनते हैं। भाई देयर रिस्पॉन्स इज़ टू गुड, उनका अटेंशन बहुत सही है। तो भाई मैंने तो जो भी वहाँ पे मेरी न्यू फ्रेंड्स बनी है मैंने उनको बोल दिया भाई नेक्स्ट टाइम होगा तो इंदौर में प्लीज़ पक्के से आना। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई आएंगे, पक्के से आएंगे। तो यही था, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। एंड आई डोंट नो इंडिगो के साथ इतना सब कुछ होने के बाद स्टिल दे डोंट गेट इट, स्टिल दे आर टेकिंग दीज थिंग्स वेरी लाइटली। सो ठीक है भाई, लो क्या बोलूँ अब मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, बट अब से बिल्कुल नहीं रखूँगी। अब से सिर्फ इंटरव्यू के लिए तैयार करूँगी, बाकी जो होगा वो होगा, जो होता है वो देखा जाता नहीं है। बट ठीक है। And also one thing, I met my one subscriber and I'm so sorry if you're watching this, मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूँ। तो you look so pretty on that day and she was so sweet, so kind, like लिटरली मैंने उसको बोला है कि हम मैं वीडियो बनाऊंगी और हम कमेंट्स में इंडिगो के बारे में बात करेंगे, तो उसने बोला या श्योर श्योर। मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी यार, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है यार जब ऐसे कोई सामने से बोलता है ओ मैंने आपकी वीडियो देखा था, मैंने आपको कमेंट किया था कि हम मिलेंगे ये वो, तो मज़ा ही आ गई थी मुझे तो बहुत ज़्यादा उससे मिलके। तो सो सॉरी यार अगर मैंने आपसे ऐसा कुछ टाइम वाइम नहीं दे पाई हूँ, बात नहीं कर पाई, तो सो सॉरी। बट या शी वॉज़ वेरी प्रिटी, शी वॉज़ वेरी गुड एंड नेक्स्ट टाइम से मैं आऊँगी, अपन फिर साथ में, इस बार साथ में GD राउंड में साथ में हम इंटरव्यू देने जाएंगे। सो या दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई इंडिगो एक्सपीरियंस। सो अब तो नेक्स्ट वीक में ही लाइक मंथ में ही सारे इंटरव्यूज़ होंगे। सो या अब जैसा भी होता है मैं आपको बताती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, stay tuned and hope you like, share and subscribe my channel. Take care, love you all.